Rahim. So this is our second lecture for the analysis of algorithm or computing the complexity of algorithm. Okay, so computational complexity, what we call it, or algorithmic complexity. We wanna see what it is all about. So for that we said that we want to remove the machine concept, right? We don't want to have a machine with us. We don't want to run on because the machine can be fast and we think the algorithm is fast, or instruction set architecture is somehow slowing my algorithm. So we consider as an abstract machine model where we do not consider or take into account the machine. In fact, we don't run our program, we predict. And then we said that for that we said that all instructions take just one step. Okay, all instructions take one step. If you can, it's Chinese लग रहा है लिखा हुआ है, all instructions take one step. तो ये हमने कहा, फिर हमने कहा कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन समवट कि अगर आपका इनपुट छोटा है, कि फॉर एग्जांपल किसी में 10 आइट्रेशन लगी और किसी में 100 आइट्रेशन लगी एल्गोरिथम में, इट डजंट मेक टू मच डिफरेंस, राइट? सो 10 और 100 इतना बड़ा बड़ा नहीं है कि इट विल हैव सम कॉम्पिटिशनल आस्क फॉर अस. But the problem starts when we have a huge number of n. So that is the growth function. How our algorithm grow with the bigger n. So that thing is called scalability. How scalable my algorithm is. That is the most important thing. And for that we said when we calculate the number of steps, we get some kind of an expression like this. Okay, but we are not interested in all the things. Rather, we are interested only in the growth, which is dominant term, because that will tell me how my algorithm will grow. Because when the n increases, this n square is increasing too much. Okay, so overall, this will give me what? This will give me the indication how my algorithm works. So what we do asymptotically is drop all the lower terms, okay, and drop all the constants or whatever we have, and retain only the governing term. So we can say the algorithmic complexity of this algorithm is big O of n square. So this is what asymptotic says, that drop all the constants, drop all the lower terms, and only retain the dominant term. Like I said, कि हम बिजनेस में पैसे निकाल रहे हैं, किसी ने 10 लाख निकाले, किसी ने 10 रुपये निकाले, तो 10 रुपये वाले बंदे वो क्या करेंगे? सो वी शुड वरी अबाउट कि जिसने 10 लाख रुपये निकाले. सो दैट इज द गवर्निंग गाय, राइट? सो similarly for the algorithms we say asymptotically we have a growth functions. We have 3 upper bound, lower bound and order function, where we have big omega, big omega, and big O and big theta. Now big O मैंने आपसे कहा कि we are trying to find the f of x. If there is, we say that some g of x is big O of f of x, then there exists some constant c1. So c1 times this g of x after some x naught should be always greater than the f of x, or f of x has to be always lesser than. So after this n naught, f of x has to be the lesser than c times g of n or g of x, right? So this was our big O, and big omega, this f of x has to stay all the time higher. Okay, so c times g of x will be always lesser than the f of x. And for the big theta, I said we need two functions. At one constant it's getting upper, it's getting more, and for another constant it's getting lesser than the f of x. So if we take an example, for example, if we got an expression for some algorithm that is 4x square plus, say for example 16 or 4n square, we take in terms of n, 16n plus 2. Okay, and I am saying this is big O of, say, n raised power 4. If I am saying that, that means, say my f of x is this, and this is going to be my g of x. Okay, and I am saying that this big O of n 4 is the
big O of this f of x. So that means, in other terms, that this 4n square plus 16n plus 2 all the time has to be lesser than n raised power 4, right? So because we know big O, that f of x is always lesser than the g of x. So if that happens, then we could say that this the f of x is actually big O of g of x. I can say like that, right? If this g of x is always greater than f of x after some x naught, okay, if it is greater, then we can say that yes, this is f of x is big O of g of x. So that means f of x always stays lesser than the g of x. Let us try to see this. So if I am saying that this is n4 is the big O of f of x, which is f of x is this expression, तो मैं कह रहा हूँ जो मेरी ये एक्सप्रेशन है इसका बिग ओ जो है ना n4 है, तो क्या है कि नहीं? अगर है तो फिर हम इसको क्या देखेंगे है कि नहीं. ओके, say this is my n, this was f of x and this one is the g of x. अब मैं क्या करूँगा, when मेरा n is 0, what will be the value of this? Anything raised power 0 is 0, 0 times 0 is 0, so this is 0 plus 16 times 0 is 0 plus 2, so I will get only 2. Is 2 less than n is 0? 0 raised power 4 is 0. Is 2 less than 0? No. 2 is not less than 0, so it is false. Now I make n 1. Now if I make n 1, so what will be the value of this? 1 ka square is 1, 1 times 4 is 4. Are you guys with me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. 1 times 16 is 16 plus 2. Is it less than 1 raised power 4? 1 raised power 4 is what? 1 only. Okay? Because 1 ka square is 1, 1 times 4 is 4, 16 times 1 is 16. So 16 plus 4 is 20. Okay? And that is equal to 22. Is 22 less than 1? False. Okay? Now let us see for the 2. For 2 is 2 times 2, 2 raised power 2 is 4, 4, 4, 16. Plus 16 into 2 is 32. Plus 2, that is equal to 50, I guess. Is it 50? Is 50 less than, we have 2, 2 raised power 4. 2 raised power 4 is 16. Is 50 less than 16? No. That is again wrong, false. Now for 3, if it is 3, 3 times 2 is 9. 9, is it 3 times 2 is what? 9, yeah. 9 into 4 is 36. Be with me, say it. So 16 times 3 is 64 plus 2. How much is that? 102, sir. It is 102. 36 प्लस ये मैंने ठीक है यहाँ पे 16 टाइम्स कितना मुझे करना है 3 3 6 is 18, that is 48. मैंने गलत किया. 48 plus 2 is 50, 50 plus 3 is 86. 86. 86 should be less than 3 raised power 4. 3 raised power 4 क्या को 3 times 3 times 3 times 3 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. 7 Is 86 less than 81? No, sir. That's again false. Okay. Now for 4. Yes. Now for 4 times 4. this will be 4 raised power 2, that is 16. 16 into 4 is 64. 64 plus 16 into 64. 4 again 64 plus 2, that is how much? 130. 130. यहाँ से कुता नहीं रहे. That is 4 raised power 4. Huh? 256. 256. So definitely 130 is less than 256. That is true. Now it is coming true. So when it is coming true, it is, this is my n naught. This is my what? N naught. After this, if you calculate for n5, n6, n7,
it will always stay greater less than the f of n, this one f of n, it will always stay less than the n raised power 4, that is my g of n. So for that, and my constant is 1 here, okay, I am putting up here the constant 1, because we are saying that f of n should be less than constant times g of n for all. सर कांस्टेंट हमेशा 1 रहेगा? नहीं ये मैंने रखा है इसके ऊपर यहाँ पे। तो सर अगर ऊपर हम तीसरी कंडीशन में कांस्टेंट 2 लेंगे, ये तो उधर पे ही ग्रेटर आ जाएगा ना सर? हाँ आएगा ना। तो हम कह रहे हैं कि ये हमें देखना है कि क्या ये, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे n रेज पावर 2 फॉर एग्जांपल यहाँ ना, तो किसी जैसे यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, मैंने एक एग्जांपल ही n4 अब हमने ली इस सूरत में, और कॉन्स्टेंट क्या रखा 1, ये समझाने के लिए कि कुछ देर तक ये ग्रेटर ही रह रहा है, यानी कि मेरी जो इक्वेशन है f ऑफ x जो है, ये f ऑफ x है, कुछ देर तक तो ये बड़ा ही रह रहा था ना यहाँ तक, जब तक कि 4 n नॉट 4 आ गया, क्या आ गया ना। उसके बाद उस 4 के बाद जो g ऑफ x है वो बढ़ रही है, वो बड़ी है। सो f ऑफ x मेरी छोटी है g ऑफ x के साथ, जो f ऑफ x है वो 130 आ रहा है, g ऑफ x कितना आ रहा है 256, तो g ऑफ x था 1 टाइम्स n रेज पावर 4। सो अगर मेरी एक्सप्रेशन ये थी, f ऑफ x ये थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज बिग O ऑफ n रेज पावर 4, कैन आई से इट? हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर। एट दैट टाइम व्हाट विल बी माय कांस्टेंट विल बी 1, c विल बी 1, एंड व्हाट विल बी n नॉट 4, 4। क्योंकि 4 से पहले नहीं हो रहा था ना, n नॉट Yes, के sir. बाद हो गया। सो दिस इज हाउ वी से दैट दिस इज आवर बिग O, दैट्स द अपर बाउंड, दैट्स व्हाट अपर बाउंड। अच्छा Upper इसी bound. तरीके से अगर मेरे पास होगा g ऑफ n, क्या होगा G of n, अगर मेरे पास होगा g ऑफ n, आई मीन ओमेगा, हमें बिग ओमेगा निकालना है, क्या जी ऑफ n बोल रहा हूँ, बिग ओमेगा हमें निकालना है। सो व्हाट विल बी द बिग ओमेगा विच इज़ द लोअर बाउंड, कि हमें पता है कि हमें क्या पता है, f ऑफ x हैज़ टू बी ऑल द टाइम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू c टाइम्स g ऑफ n, राइट, ओके। yes sir, मगर किसके लिए, फॉर ऑल, कोई कांस्टेंट होगा c और n नॉट विल बी सम वैल्यू ग्रेटर देन 0, n नॉट ग्रेटर देन 0, कोई वैल्यू होगा n नॉट का ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर मेरे यही था, मेरा ये था ना 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2, ये मेरी f ऑफ x है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये जनाब जो f ऑफ x है, इट इज़ बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन f ऑफ x will be Is all the always times greater, it has to be greater than, okay, that means 4x square plus 16x plus n है, 16n plus 2 is always greater than n2, बट कब, किसी n नॉट के बाद, किसी n नॉट के बाद। अब इस सूरत में अगर हम लेंगे कि मेरा कांस्टेंट c1 है, c कांस्टेंट कितना है 1, तो अगर हम 0 भी वैल्यू लेंगे ना, यहाँ पे 0 वैल्यू लेंगे, n का वैल्यू लेंगे 0, सो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और 2, और ये 0 बनेगा। इज 2 ग्रेटर देन 0? यस, यस सर, यहाँ n नॉट आपका 0 ही है, यानी कि 0 के बाद इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है जी। यस सर, क्योंकि ये जो ग्रेटर साइन जो आप दिख रहा है, ये हमेशा ही ग्रेटर निकलेगा, दिस हैज़ टू बी, क्योंकि यहाँ से n स्क्वायर है, यहाँ से n स्क्वायर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो पता ही यस बोर्ड है हमेशा यस ना, ठीक है। अब बिग थीटा Yes, में sir. क्या बोलते हैं, बिग थीटा, कि हमारे पास दो कांस्टेंट होने चाहिए ना, एक f ऑफ x जो Yes, sir, मेरी same होगी, thing. f ऑफ x विल बी, it has to be both, it has to be big O of g of n, and it has f of x also has to be
ओमेगा। बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है ना। सो अगर आपकी जो इक्वेशन है 4x² प्लस 16x प्लस 2, ठीक है, ओके। तो यस मैं सर। कह रहा हूँ, अगर मुझे कहना है कि ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आपका जो है एन स्क्वायर ही रखूँगा मैं, क्या रखूँगा मैं, एन दिस इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर एज वेल एज बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। अब आप कहोगे दोनों कैसे हो सकते हैं, एक साथ ओ भी होगा ओमेगा भी होगा। सो फॉर दैट वी हैव टेक डिफरेंट कॉन्स्टेंट एट दिस टाइम, वी विल टेक, सो एट वन टाइम फॉर दिस वी विल टेक सी सम कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू वन 1। टाइम्स जी ऑफ एक्स, और फॉर दिस वी टेक C2 टाइम्स जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। सर कांस्टेंट हर इटरेशन में चेंज होता है कि मतलब ये पहले हम ऊपर ही 1 डिफाइन करेंगे फिर हर एक में 1 ही रहेगा? नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट कहाँ चेंज होगा। नहीं सर, मतलब जब हम लेंगे ना सर एक इटरेशन में, ये हर एक इटरेशन में चेंज करना, जैसे आपने लिया ना पहले 0 वैल्यूज पे n। हाँ, नहीं नहीं, ये अपनी, ये हम बता रहे हैं कि ये अगर है इसका तो किस वैल्यू पे है। तो फिलहाल हमें 1 पे ही आ रहा था ना यहाँ यस पे। सर। हाँ, तो हमें 1 पे आ रहा था, हम फिर देख सकते हैं कि 2 पे आ रहा है। इससे हमें पता चलेगा ना कि मतलब बिग ओमेगा जो हम बिग ओ कहते हैं ना, इससे पता चलेगा कि अगर मेरा एल्गोरिथम है, आपको पूरी समझ नहीं आ रही अभी, मैं एग्जांपल्स करेंगे फिर समझ आएगा, कोडिंग एग्जांपल्स करेंगे एक्चुअली, उससे समझाऊंगा मैं। हम ये कह रहे हैं असल में कि ये जो हम कह रहे हैं ना ये चीज़ें, हम असल में ये कह रहे हैं कि मेरा एल्गोरिथम अगर वर्स्ट भी चलेगा ना, कितना वर्स्ट चलेगा, ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम कितना चलेगा ये अगर ना हालत ही ख़राब गई। इट इज़ लाइक दैट, सो बिग ओ इज़ लाइक दैट विच टेल्स द अपर बाउंड, कि अपर बाउंड मतलब एम और इससे ज़्यादा ख़राब नहीं चल नहीं जा सकता, सकता। ठीक है। तो हम ये अपर बाउंड दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से आपको लाल चौक के लिए जाना है हमें, मैंने आपको एक गाड़ी दे दी, मैं कह रहा हूँ ये वर्ष से वर्ष केस जब होगा ना, आपको 1 घंटा लगेगा, आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन अपर बाउंड जो मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, दैट इज इट इज़ अ बिग ऑफ 1 आवर। आपको समझ राइट आए, सर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि एन स्क्वायर, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बिग ऑफ एन स्क्वायर भी है, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी है, तो तब मैं कह सकता हूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स मेरा है, इट इज़ एक्चुअली बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अब इसमें ये बिग ओ कब होगा, बिग ओ में ये वाली जो चीज़ है ये लेस देन रहनी चाहिए ना, और बिग ओमेगा में यस ये सर। जो एफ ऑफ एक्स है ये ग्रेटर रहनी चाहिए। अब आपका काम है कि आप निकालो, अभी हमने एक काम तो हमने किया ही अभी यहाँ पे, कि जब मैं बिग थे इसका बिग ये ओमेगा निकाल रहा था, ठीक है, बिग ओमेगा जब मैं निकाल रहा था, सेम मैंने कहा ना जैसे बिग एन स्क्वायर, उस वक्त मैंने एन नॉट ज़ीरो रखा, ठीक है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर ये बिग ओमेगा है तो इसको बड़ा होना चाहिए इसके साथ, इसको क्या होना चाहिए, बड़ा। 4x स्क्वायर प्लस 16x+2 को बड़ा होना चाहिए आपके एन स्क्वायर के साथ। मैंने कहा एन आप एक काम करो, कांस्टेंट 1 रखो, और एन नॉट ज़ीरो ही है, और ये हमेशा ही बड़ा है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ एट द साइमल्टेनियसली ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा भी होना चाहिए। उस वक्त में कांस्टेंट 1 मैंने लिया था, 1 C1 क्या लिया था मैंने, 1, है ना। एन स्क्वायर में मैंने कांस्टेंट लिया था 1। अब इसमें क्या कांस्टेंट लूँगा मैं, ताकि उससे बड़ा हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँ ना 2 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं, देखिए मैं समझा दूँगा, अगर मैं करूँ 4x² प्लस 16x+2, ये मेरी एफ ऑफ एक्स है, मैं कांस्टेंट 1 टाइम्स जी ऑफ एन जो ले रहा हूँ, ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ सी कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं 1, ओके, एंड जी ऑफ मैं ले रहा हूँ एन स्क्वायर। सो जब मैं देख रहा हूँ 1 इंटू एन स्क्वायर, उस वक्त एन नॉट मेरा 0 है, एन नॉट क्या है, 0। जब मैं इसको जो मैं एन का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ये 0 ये 0 और ये 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 इंटू 0 का स्क्वायर। व्हाट इज 0 का स्क्वायर, दैट इज 0, जी 0 इंटू 1 0। इज 2 लेस देन, is 2 greater than 1? यस। So is this expression big O or big omega of this? बिग ओमेगा। बिग ओमेगा भी बड़ा आ रहा है ना। अब अगर मैं कांस्टेंट इसका रख रहा हूँ, मेरे पास एफ ऑफ एक्स है 4x²
प्लस 16x प्लस 2। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कांस्टेंट 2 टाइम्स जो g ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है, और कांस्टेंट जो मैं रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ 20, फॉर एग्जाम्पल क्या रख रहा हूँ मैं, 20. मैंने कांस्टेंट इंक्रीज किया, मैंने कांस्टेंट रखा 20, Hmm. ठीक है, या Yes. वट आप रखना चाह रहे हो, 20 मैंने रखा, टाइम्स g ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बिग ओमेगा है, वो उससे उसका मतलब क्या है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ये नहीं नहीं, एफ ऑफ अगर अगर एक्स। बिग ओ मुझे रखना है, बिग ओमेगा बिग तो ओ आ गया ना, सर, बिग ओमेगा मुझे आ गया यहाँ पे, छोटा होना चाहिए फिर। यानी कि ये छोटा होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल यस मैं सर। लिख दूंगा एन नॉट में लूंगा जीरो, एन क्या लूंगा मैं, आई विल टेक एन जीरो। सो जीरो में आएगा, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो प्लस 2, ये आएगा यहाँ से 20 इंटू एन स्क्वायर, जीरो जीरो का स्क्वायर को जीरो इंटू टू जीरो जीरो, इज 20 जीरो लेस देन जीरो, नो, फॉल्स। अच्छा अब वन लो, क्या लो, 1, अब वन लो, अब वन की से क्या आ जाएगा, 4, 16, 2, 20, 20, 22. ये 22 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 40, क्या लेंगे, Hmm. कांस्टेंट 40. लेंगे 40। अब बताओ, Less than. अगर मैं 40 सर ले ये रहा हूँ, बन ये गया अगर मैं 40 ले रहा हूँ, सो यहाँ पे जब वन होगा तो क्या आएगा, सर 20. 1 के वैल्यू पे। आएगा ना, ये 22. आएगा 4, ये आएगा ये सर 16 ये आएगा प्लस 2, 22। 22 इज 22 लेस देन 40, यस। और क्या ये एन स्क्वायर Yes. को तो गए थे ना, ऐसा करो, अगर वन Yes. स्क्वायर ना, ये ना वन स्क्वायर क्या ना वन स्क्वायर, Hmm. अगर बेचना 20 ही नहीं वहाँ क्या नहीं वहाँ, 40. मगर मैं 20 दिन नहीं See? बेचन 20 इंटू वन को, मगर 20 हो ना, 40. बस ना बिनिम 20 फॉर एग्जाम्पल 20 इंटू वन को ना 20, सो गैस 22 गैसे 22 लकुट 20 को फॉल्स। वो फॉल्स पे, अगर बात क्या नंबर 3 वैल्यू 2. 2 अच्छा ना 2 इन 2, सो ये मतलब 2 टू का स्क्वायर को तो 4, 4 4 4 16 प्लस 16 plus 32 प्लस 32 प्लस 2, हाउ मच इज दैट, 50. 50। 50 और कुछ ही, योरी सर 2 का स्क्वायर 4 24 दैट 80। सो 80, 50 छा मैं लेस देन 80 के, अच्छा 50 छा लेस देन 80, यस वो ना ट्रू, आओ ना मैं ट्रू, सो यस सर। दैट मीन्स अगर इसमें वो ब्याक वैल्यू थी ना, वो यू नेक्स्ट 3 वैल्यू 4, वो एन नॉट आवाज 2, एन नॉट क्या आवाज 2 आफ्टर एन नॉट इज इक्वल टू 2, बट कांस्टेंट इज 20, कांस्टेंट व्हाट, वो 20। in my case c1 was 1, n naught was 0, at that time f of x, f of n was big omega of g of n square, हाँ उस ना, यस सर। मगर ये मीन्स में कांस्टेंट जब मैंने लिया 20 और n नॉट कितना आया मेरे पास 2, कि 2 के बाद हो रहा है ना ट्रू, फिर उस सूरत में जो मेरा f of x n है वो है बिग ओ ऑफ g of n square। जी सर। अब तो दोनों, मगर एन स्क्वायर इधर भी, एन स्क्वायर इधर भी, लेकिन कांस्टेंट 1 यस पे और कांस्टेंट 2 पे, कांस्टेंट 2 पे, तो 20 पे। बिग ओमेगा भी आ गया, बिग ओ भी आ गया। तो जब ये ऐसी सूरत है तब मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब जो मेरा एफ ऑफ एन है वो दरअसल दोनों का इकट्ठे लिखूंगा, ये बिग थीटा है, क्या है, बिग थीटा थीटा ऑफ जी ऑफ एन स्क्वायर, फॉर कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट क्या उस 1, कांस्टेंट 2 इज 1 इक्वल टू 20, एन नॉट ओस ये 0, 0 ये एन नॉट को 2, 2 so I could say it's a big O of big theta of g of n, बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन जिसमें अपर बाउंड भी निकल रहा है, लोअर भी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे आप यस सर। ये बताओ अब, शॉर्टकट में हम एसिम्प्टोटिक में क्या करते हैं हम काम, कि लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स हम सब डिलीट करते हैं, हम वी टेक द गवर्निंग टर्म, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे पास एक फंक्शन है उसमें लूप चल रहे हैं, इसको फॉर आई इज इक्वल टू 0
i इज लेस देन n i प्लस प्लस, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बतानी है, ठीक है। द इंटरव्यू कैन द क्वेश्चन कैन बी इन इंटरव्यूज लाइक दीज, एंड मैं कोई वैल्यू मेरे पास है सम प्लस इज इक्वल टू 1 में कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी बतानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऊपर से फंक्शन वंक्शन है वो हम लिखेंगे नहीं इसमें, तो पता ही ना फंक्शन है कोई, इसमें ऐसा हो रहा है। हमें देखना है सर कि एन भाई, स्क्वायर हमें देखना है कि भाई ये कितनी बार चला, कैसे एन स्क्वायर है, ये कितनी बार चलेगा। सर ये लेस देन एन n होगा n minus 1 एन माइनस 1। कैसे एन माइनस 1, जीरो से तो चल रहा है, सर 0 से लेस देन एन है ना सर? तो कितनी बार चलेगा, अगर 4 नहीं है सर एन 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 सर एन टाइम चलेगा। ये एन टाइम चलेगा। अब बिल्कुल बाकी सर, देखो, n फिक्स ये देखो ये एक बार चलेगा, चलेगा ना एक बार, ये कितनी बार चलेगा, ये ये एन सर टाइम चलेगा, ये एक सर बार नीचे चलेगा। वाला सर एन माइनस 1 टाइम चलेगा कौन, सर सम। नहीं ये कितनी बार चलेगा, आई प्लस प्लस, ये सर ये भी चलेगा। n minus 1 ये एन माइनस 1 टाइम चलेगा, नहीं सर क्योंकि हाँ ये चलेगा ना फुल एन टाइम, क्योंकि इसमें आई का वैल्यू है ना, यस सर इसमें है ना जब भी इसके बराबर होगा तब निकलेगा बाहर। So this will be r minus 1 times whatever it is 1 time, हाँ। ये भी चलेगा ना, अगर ट्रू हो गया वर्स्ट केस में सब बार ट्रू हो गया, सो दिस विल बी अगेन n minus 1 टाइम एंड सो ऑन। अगर और भी प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट्स है, सो इट इज़ n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और ये एक प्लस 1 है ना। सो ओवरऑल दिस विल बी 1 2 3, ओके दिस इज 3 दिस इज 3n आख्त से माइनस 1 है ना। और एसिम्प्टोटिक बोलता है इसको गोली मारो, इसको गोली मारो, जो गवर्निंग टर्म है उसको बोलो। सो दिस विल बी बिग ओ ऑफ n ओनली, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी बिग ऑफ n। सो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखनी है आइटरेशन कितनी बार चलेंगी, कि भाई ये चल गई n बार, तो बस बिग ऑफ n है शॉर्टकट में, ठीक है। एक्सरसाइज और करेंगे आपको समझ आ जाएगा। For I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, ठीक है। For j is equal to 0, j is less than n, j plus plus, ठीक है। अब sum plus is equal to 1। अब एक एक स्टेप मत देखो, सिर्फ देखो आइटरेशन कितनी बार चल रही है। अब डबल लूप है ना, ये चलेंगे n बार और ये भी चलेगा n बार, तो ये लेकिन ये हर एक के लिए n बार चलेगा ना। यस सर ये जब i 0 है तो ये n बार चलेगा, जब i 1 है तो n बार चलेगा, सो ये टोटल चलेगा n इंटू n टाइम्स, है ना, है कि नहीं। देखो आउटर लूप अगर 3 बार चली, आउटर लूप अगर क्या चली 0 1 2 के लिए फॉर एग्जांपल, हो गया ना 3 बार। अगर आपका n 3 है तो आउटर जब 0 चला था तो पहली बार कितनी बार चलाए, जब i 0 था तो ये चलेगा ना j लेस देन n 0 टू, सो ये चलेगा 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए चलेगा ना। जब i 1 है तो उस वक्त कितना चलेगा 0 1 2, जब ये है तो उस वक्त कितने वक्त चलेगा 0 1 2, ठीक है ना। So that means how many times it will run now? n into n You go 3 शत्रकस गए नाउ, या शॉर्ट में अगर 3 आपके पास था, क्योंकि ये आउटर लूप n टाइम चलेगी, इनर लूप n टाइम चलेगी, तो टोटल चलेगी n टाइम्स n, सो n स्क्वायर टाइम्स, so we can say in short is big of n square and we don't worry about the other sum other constant all, ठीक है। तुम ना हम फकीर मैं 10 रुपये 12 रुपये कड़न, जो 10 रुपये निकालेंगे चंदा, और भाई तुम क्या करोगे, उनको बाढ़ में मारो। हाँ हम गवर्निंग टर्म देखेंगे ना ओनली एसिम्प्टोटिकली, यू विल से एसिम्प्टोटिक बिगो ना, बिगो अपर बाउंड बोलेगा कि 22। इसमें क्या है कि कभी बेस्ट केस भी आ सकता है कि मतलब ये चालू नहीं खुद को ये मतलब सॉर्टेड ऑलरेडी था, फॉर एग्जांपल सॉर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी सॉर्टेड चल रहा था, लेकिन मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितना चलेगा ये n स्क्वायर, हाँ वर्स्ट केस में 9 बार चलेगा,
This is what big O tells us, na? Let us take Right. more examples to understand properly. For I is equal to 0, I is less than n. थोड़ा आप समझ आ रहे हैं आपको, अब थोड़ी कृपा I plus plus. For j is equal to 0, यहाँ पे ख्याल रखना j is less than I कह रहा हूँ मैं. क्या कह रहा हूँ मैं? J is less than I. j plus plus. ठीक है. अब बताओ यहाँ पे सम वगैरह फिर हैं, सम प्लस इज इक्वल टू 1, व्हाटएवर और भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वी डोंट वरी अबाउट देम ना, दे आर कांस्टेंट टाइम्स. ओके, व्हाट वी सी इज कि मैक्सिमम आइटर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है, वो ये एन की टर्म्स है. ठीक है ना. अब ये फॉर एग्जाम्पल एन टाइम चलेगा तो बताइए ना. यस सर. ये तो एन टाइम चलने वाला है. ठीक है ना. ये पहली बार कितनी बार चलेगा? जी सर, एक बार चलेगा. पहली बार एक ही बार चलेगा. दूसरी बार? दूसरी बार सर 2 बार. फिर 3 बार. पहली बार 1 बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, एंड सो ऑन. फिर n-2 बार चलेगा, फिर लास्ट में n-1 बार चलेगा. है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है. Yes sir. हाँ, तो अब बताओ टोटल कितनी बार चलेगा? n-1. एक ये चलेगा n, एक तो ये n बार चला, और ये चलेंगे आपस में कितनी बार? n-1 बार, फिर चला ये n-2 बार, फिर चला ये n-3 बार, है ना, अप टू लास्ट में 1 बार. इनफैक्ट मैंने उल्टा किया, लेकिन लास्ट में चलेगा ये n-1 बार, लेकिन पहली बार 1 चलेगा. ठीक है ना. Right sir. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इट इज कॉल्ड व्हाट? Arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. AP. ठीक है. या दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो ये कैसे निकलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? आपको कैसे निकलेगी? आपको कभी पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में? Yes sir. इनमें वो common difference होती है ना शायद? क्या कॉम्बिनेशंस? Between the terms n-1, n-2 और n2 और n-1 के बीच में एक difference है. So that इसमें means शॉर्ट फार्मूला ये है कि इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. दिस इज द फार्मूला. जब ऐसा आपको चीज़ आता है, सो शॉर्ट फार्मूला है n इंटू n प्लस 1. अगर ये खाली होता ना n-1, n-2, n-3, ये n नहीं होता, तो दिस वुड हैव बीन इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2. लेकिन जब ये n भी आ गया तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर काम करना थोड़ी सी. सो शॉर्टकट में ये ऐसा आएगा. सो n इंटू n इज व्हाट? n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2. अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, हम क्या उनको, जो लो ऑर्डर टर्म्स हैं, उनको क्या करेंगे हम? विल टॉस देम इन अ ट्रैश. ओके, जस्ट टॉस देम इन अ बिन. जो गवर्निंग टर्म है वो कौन है? n square. सो बिग ऑफ n स्क्वायर. सो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकलेगी आप बिग ऑफ n स्क्वायर. ठीक है. Yes sir. ओके. अच्छा जी, एक ये और आप फिर से थोड़ा समझाओगे ये कैसे, मतलब ये हमने n स्क्वायर कैसे लिया यहाँ पे? सिंपल. आपके पास जैसे जब जैसे ये है ना, फॉर पहला लूप जो आप कह रहे हो n टाइम्स चलेगा, हाँ, फिर दूसरा चलेगा ये ऐसे n 1 2 से लेके n-1 तक. तो करो ऐड. मतलब सबको हमें ऐड इनको करना है ना. हमें अच्छा, करना हमें है. इनको ऐड कर. टोटल टाइम्स कितना निकलेगा? सो ये निकलता है एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनको ऐड करके. अर्थमेटिक नहीं, प्रोग्रेशन, मैं कह रहा हूँ ये जो है ना पहला लूप, इसका है n, और दूसरा है ये लुक हियर. अगर हमारे पास ऐसे हैं कि आपके पास 1 है. सर here it is सर लूप तो मन करते कौन है मल्टीप्लाई. एक मिनट मैं बता रहा हूँ. एक मिनट. अगर हमारे पास 1 है, क्या है? +2 +3 +4 +5. इसको मुझे करना है, कितना निकलेगा? ये 15. इधर आवस 15. ठीक है यार तो 6 तम करो. 3 गई 5 तक गई 6. बहकना एम्बल लिखित n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2. व्हाट डू यू से? हाँ वो है ना, वो हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो. हाँ, अगर मैं इसके बदले लिखूंगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, अभी मुझे n पता है ना कि 3 है. n क्या है? एग्जैक्टली. अगर भी सॉल्व कर या तो 3, यू गो 3 - 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2. 3 - 1 को देखो
2 2 into 3 क्या को 6 6 बटा 2 को देखो 3 ना वापस गलत किया मैंने कुछ हाँ सर 3 आया बराबर नहीं यहाँ सर पे n रहा है ना 3 शायद n+1 है प्लस शायद। करना है ना यहाँ पे 3 + 1 को देखो 4 4 3 ज़ा 4 12 3 are 12 12 divided by 2 so 6 2 into 6 is what 12 रहा ना 6 you say answer near anus so that is the arithmetic progression progression अब इसमें अगर मैं ये नहीं करूँगा मैं कहूँगा कि भाई मेरे कितनी बार निकलेगा अगर मेरा n इंटू एन माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है how many times it will run I will solve it n into n is n square plus n divided by 2 अब जितनी भी टर्म्स शॉर्ट टर्म्स मेरे पास होंगी उनको क्या करूँगा मैं I don't worry about cancel that कर I will see the governing term I will see what the big term कौन है मेरे पास asymptotic ना जो मैंने सिखाया आपको that is n square that's what n²। ठीक है बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है और ये जो एक मिनट अब थोड़ा नीचे जाओ थोड़ा सा ये जो n+ है ना ये बड़ा n प्लस ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर ये सिंटैक्स एरर है ये स्मॉल है ये वाला n। natural small and capital के sorry capital है अच्छा ठीक ठीक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसमें। ठीक let's do सर more ये you will जैसे understand wait a second let's do more examples you will understand then ask the questions huh ओके ठीक है ओके मेरे पास है I is equal to 1 for example and I say while आपने कल का क्या ना क्लास स्किप I is हाँ less कल than एक्चुअली मेरे को मीटिंग थी तो इसीलिए। कोई बात नहीं I is equal to 1 while I is less than n मैं कह रहा हूँ sum plus is equal to 1 ठीक है और I का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है ना I am saying I is equal to I into 2 क्या बोलो किसके बारे में say for example n is 16 n is how much 16 so how many times this will run सर ये चलेगा सम प्लस चलेगा 15 टाइम्स मुझे मैंने आपसे कहा ना कि अब सम वगैरह कुछ मत करो आप देखो लूप कितनी बार चल रही है बस दैट इज Sir, माय loop गवर्निंग 16 टर्म राइट बाकी कॉन्स्टेंट्स हम फेंकने जा रहे हैं ना सर लूप चलेगा 16 टाइम कैसे चलेगा 16 टाइम्स देखो चलो करेंगे हम माइनस देखो करेंगे चलो अच्छा करेंगे 1 से देखो करेंगे अच्छा, one करेंगे एक मिनट आई कितना है पहले 1 1 चला इज 1 लेस देन 16 यस चलो ना यस सर I is equal to I into 2 I को तो शुमकेस 1 1 into 2 को देखो अच्छा ठीक 2 2 कहाँ चलेगा 15 टाइम चला अब 2 के लिए है ना is 2 less than n is 2 less than 16 यस सर yes I कितना बनेगा 2 into 2 4 I is not 2 2 times 2 is 4 सर मल्टी is 4 less than 16 yes लेकिन उसको हाँ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे आप उसको ये किया ना यहाँ पे इंक्रीमेंट सुना i into 2 इना सुना i प्लस प्लस के ये मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे I is equal to I into 2 कर रहा हूँ मैं अच्छा ठीक मैं I को डबल जंप्स लगा रहा हूँ ना मैंने I पहले 1 रखा फिर 1 times 2 is 2 फिर I 2 बन गया फिर I बनेगा 2 times 2 is 4 सम क्या सम सर ये जो 20 की टर्म है ना वाइल के बाद सम हाँ इसको गोली मारो ना मैं क्या करना मैं तो बता चुका हूँ ना आपको कितनी बार कहूँगा कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स वॉन्स्टेंट्स हैं उनको फेंकते हैं हम ठीक है सर तो इंटरव्यू में आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे ना बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपको बिग ओ बताना है सो इसकी बिग ओ क्या निकलेगा वो बताना है हमें ठीक है तो उसमें क्या करेंगे हम देखेंगे गवर्निंग टर्म कौन है गवर्निंग टर्म है जो इस लूप की आइटरेशन कितनी चलेंगी दैट इज इट यस सर रेस्ट वी फॉरगेट ठीक है क्योंकि जब n टेंड्स टू लार्जर स्मॉलर टर्म्स हमने प्रिंट एफ किया स्कैन एफ किया एक बार चला वो 2 बार चला इट डजंट मैटर राइट आप बताओ ये कितनी बार चला लूप वो आपकी गवर्निंग टर्म बनेगी 4 2 सर 8 अब 4 बन गया ना आई बन गया 4 ठीक है दूसरी बार आई क्या बनेगा 8 फिर और 5 बार चलेगा 16 जब बनेगा ये निकल जाएगा बाहर भागेगा कैसे 5 4 ही बार चलेगा पर चला ना जो ही 5 16 बनेगा 16 इज नॉट लेस देन 16 इट विल गेट आउट सो अगर n 16 है कितनी बार चला 4 टाइम्स
1 2 3 4 टाइम चला. So we could say 2 raised power 4 is 16. That is why ये 4 बार चला. Because we are dividing it into the half. जो बाइनरी सर्च है वो यही मसला है. अब आप देखें इसको हम कैसे लिखेंगे इन बिग ओ. ठीक है, याद रखना चाहिए. अगर मैं कह रहा हूँ ना कभी फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 2 raised power 3 is equal to 8, I can write it in this way. log to the base of 2, जो log to the base of 2 है 8, that is equal to 3. यानी कि अगर आपको 8 का log निकालना है ना to the base 2, वो 3 निकलेगा. ठीक है, इसी तरीके से 2 raised power 4 is equal to 16 है ना. I can write in logarithm as log to the base 2 of 16 is equal to 4. 2 raised power 10 कितना होता है? 1024. तो logarithm में कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? log to the base 2 of 104 is equal to 10. So अगर मुझे इसका लिखना होगा algorithm, what can I write? Big O of Log of 2 raised power 16 is equal to 4. log of n. मुझे पता 16, whatever n is. Mr. log of 16 to the base 2 छु पाथ ही छु to the base Mr. log of n अगर 16 छु वंसा log of 16 को दगो बुश 2 raised power कूद को 16 बाय 2 raised power 4 को 16 then log of 16 क्या नहीं 4. So answer will be 4. अगर मेरे पास 1024 elements थे मैं देखूंगा what is the log of n, that is 10. Answer will be 10. So यानी कि इसका जो निकलेगी वो log of n निकलेगी कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो आप मुझे बताओ आप क्या log of n बेटर है था कि n बेटर है? Log of n या n better है. देखो आपको 16, अगर आपको n 16 है ना, what is n? अगर n टाइम्स लगा तो मुझे 16 टाइम्स लगेगा. what is n स्क्वायर? वो मुझे 16 टाइम्स 16 whatever 16 into 16 is that टाइम्स लगेगा. so that is अगर किसी का n स्क्वायर है वो तो खराब है एल्गोरिथम है ना n से. Yes so sir. n is better than n स्क्वायर ना. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ log of 16, क्या कर रहा हूँ? Log of सुकेश फिर चल, वो कितने बार चलेगा? only 4 times. So what is log of n then? It is much better than the n. That is much better than the n square. ठीक है, समझ आई माँ कितना Yes sir. है कि नहीं? Yes sir. आगे समझ में और करेंगे प्रॉब्लम्स, उससे आएगा समझ. ये पर क्या नहीं है समझ वैसे. अच्छा शायद था 5th. आप बताओ इसको while I is greater than 0 में नहीं बताऊंगा, आप करोगे. ठीक. सम प्लस इज इक्वल टू 1. ठीक है, I इज इक्वल टू I डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ मैं. अब फिर से लो आपका जो ये है ना हाँ इज I, जब तक I ग्रेटर देन 0 है तब तक आपका I का वैल्यू 16 ले लो स्टार्ट में. I का वैल्यू क्या लो 16. बताओ इसका क्या निकलेगा लॉगरिथम है ना, इसका लॉगरिथम नहीं है ना, कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी इसकी. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट. जल्दी बताओ. मतलब ये चलेगा ना तब तक जब तक I16, लेकिन आप निकालो, बताओ मुझे कितनी बार चले, करो ना रन, फिर बताओ मुझे क्या निकलेगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी. सिंपल एज इट इज. पहली बार I1 होगा राइट, तो I डिवाइड बाय 0 जब जाएगा. I डिवाइड बाय 2 सॉरी, I डिवाइड बाय 2. वो 16 डिवाइड बाय 2 व्हाट इज दैट? गोनिक ना I16 छु गोड जो I16 इज 16 ग्रेटर देन, मैंने क्या ये इसका उल्टा है और कुछ नहीं है ना, ये इसका उल्टा मैंने किया ना. इसको मैंने 1 से चलाया, इसको मैं 16 से चला रहा हूँ. इज 16 ग्रेटर देन 0? यस, पहली बार है ना I16, तो 16 के लिए चला 16 के लिए. अब क्या हो जाए I क्या बनेगा 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8. क्या 8 ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी है, चलेगा. तो नेक्स्ट टाइम व्हाट विल बी I? 4. सो 4 के लिए चलेगा. ये तो लेकिन अब बन गया ये लेकिन 2. इनफिनिटी कैसे इन्फिनिटी बनेगा? बन गया ना 2. इज इसके 2 बाद इज 0 2 जाएगा. ग्रेटर देन 0? हाँ उसके जी बाद है. उसके बाद क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2 व्हाट इज दैट? 0 1 1 सॉरी 1 का तो चले Yes sir. चाइले पात 1 सा
0.5. मॉकलियो ना Yes, sir. वो ना लॉकुट अमिस द्राव अच्छा, नेबर सो अगेन इसका भी होगा log of n And ठीक है सर एक मिनट, ये जो ये हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले 16 जाएगा फिर 8 फिर 4 नहीं ये फिर सीधी 2 बात है या नहीं नहीं ऐसे नहीं करो ना आप ये मत करो आप ये सीधी सी बात है I/2 जब है ना आप हाफ कर रहे हो ना हर बार या यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने आप नीचे से जा रहे थे ना तो मल्टीप्लाई किया जब भी हाफ हाफ कर रहे हो ना किसी चीज़ का तो वो लॉगरिथमिक बनेगा सीधी सी बात है वो log of n बनेगा अच्छा ठीक। हम करेंगे ना फिर जो हमने बाइनरी सर्च है उसमें हम बताएंगे ये बाइनरी सर्च जो हमने किया उसमें तो यही किया ना मैंने उसमें हमेशा हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं ना Yes, sir. क्योंकि हम प्रॉब्लम को हाफ कर रहे हैं ना हर बार अच्छा इसका बताओ सिंपल है फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस ठीक है प्लस फॉर j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन n j प्लस प्लस ठीक है और तीसरा लूप इसका है 3 लूप हैं इसके फॉर k इज इक्वल टू 0 k इज लेस देन n k प्लस प्लस और कुछ कर रहे हो आप इसमें एन क्यूब एब्सोल्युटली n क्यूब खेल खत्म बिकॉज ये n टाइम चलेगा n टाइम चलेगा n टाइम चलेगा यानी कि ये बेसिकली जो ये चलने वाला है ना जब i 0 था जब j 0 था तो k चलेगा n टाइम्स फिर जब ये फिर j 1 जब था ये चलेगा n टाइम जब j 2 था जब j फिर n तक चलेगा तब तक n टाइम फिर i के 1 जब i 1 बनेगा है ना तब j 0 के लिए ये चलेगा n टाइम्स फिर j 1 के लिए चलेगा n टाइम्स एंड सो ऑन सो इट इज ये चलेगा n टाइम्स n टाइम्स n टाइम्स n क्यूब सो बिग ऑफ n क्यूब ये वर्स्ट केस हम बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं चल सकता राइट कभी कभार मतलब आपने स्किप किया होगा कुछ किया होगा वो चल सकता है कि कम चलेगा इससे लेकिन इससे बदतर पाक ने क्या मतलब हम भी वातल हैं पर इतना गटकार नहीं है शुद्ध बूझमुत Sir, वो उसमें सर एक क्वेश्चन सर अगर आते हैं ऐसा को खबर को ना J less than I आशा कहते जे इसमें तिलपा क्या n into n minus 1 into n you have to calculate you have to see how many times it will run ठीक है ना so क्या चुक बना गो कैलकुलेट करो मगर m को बात चल ने यो से चला ये बाहर ना लड़ाई चल रही थी दो नेबर्स की उन्होंने गाली गलौज की वहाँ आता है ना वो शेख है जो ना सफाई करता है सड़क तो ये वुच ना कड़ाई तूफान गाली गलौज हो रही थी तम तो दुबन दुबन हम भी वातल हैं मगर इतना गटकार नहीं है सो यानी कि एम खुद वर्स चल ने वन समय या तला या क्या शुद्ध बना फॉर i is equal to 0 थो i is less than n i plus plus teachers for j is equal to 0 j is less than n j plus plus कोरेम sum plus is equal to 1 पच्चू चलावा बे लूप for i is equal to 0 i is less than n i plus plus और ये फिर से चल रहा है for k is equal to 0 k is less than n k plus plus यानी कि अख लूप छे यतन ब्याख लूप छे यतन हां पत कना बे सम प्लस इज इक्वल टू 1 यतन फॉर एग्जांपल यम खत कोता चले n स्क्वायर टाइम्स ये चिकत चले n स्क्वायर टाइम्स वो बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस बिग ऑफ n स्क्वायर जो ना सो इन टोटलिटी क्या लिखा हुआ बिग ऑफ n स्क्वायर शॉर्टकट में ठीक है यस सर तो सही बनी तेल फॉर i is equal to 0 i is less than n i plus plus for j is equal to 0 j is less than square root of n j plus plus याद कर मैं less than square root of n the sum plus is equal to 1 which equal n bar shortest में Yes. n square चलिए root of n times चल ना
चलना रूट ऑफ एन टाइम्स क्या ना कोता मत स्क्वायर रूट ऑफ एन असलम दिस इज अप टू द स्क्वायर रूट ऑफ एन दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलेगी ये चलेगी एन टाइम चलेगी टोटल कितनी बार चलेगी बिग ऑफ And एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन the root of n. ठीक है अगर भाई लेख रेज पावर उसमें ये गो एन रेज पावर 1 वो ना Yes, अच्छा sir. शाक का n raised to power 1 by 2. वेरी गुड दिस इज एन रेज पावर 1 by 2 बिकॉज स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं रेज पावर 1 by 2 bases are same powers will be Sir, added. bases are same Added. powers will be added big O of n raised power powers will be added 3 that by is 1 plus 1 by 2 how much is that 2 ones are 3 2 by plus 2. 1 is 3 by 2 so that will be big O of n raised power 3 by 2 so this will be its complexity समझो जी मा yes, sir. तला ये बनी तली किसमें ताकुन था ये हो सहाल पाम था for I is equal to 0 खत्म चलो रिवर्स for I is equal to n I is greater than 0 I divide is equal to 2 ठीक है for j is equal to 0 j is less than 1 j plus plus and sum plus is equal to 1 कौन सा कैसे चलिए J June चलिए exactly Sir, you split him loop. चलिए n by 2 times. ये गए थे असाइनमेंट क्या गए कैलकुलेट दिस एंड Photo, टेल मी yeah. टुमारो ओके बेच दें ब्याह का ये एग्जांपल ये दो करना मुझे करके देना ठीक है yes, sir. फॉर I is equal to 0 I is less than n I plus plus ठीक है for j is equal to I for j is equal to I j I के बराबर है जो I है वो ही j शुरू वहीं से होगा और जब I 0 था तो j भी 0 ही होगा जब नेक्स्ट टाइम I 1 होगा j 1 से ही चलेगा और j चलेगा जब तक ग्रेटर देन 0 है j माइनस माइनस सम प्लस इज इक्वल टू 1 ठीक है इसमें ये ख्याल रखना है कि मैंने लिखा है यहाँ पे I लेस देन n है ये 0 से n टाइम चलेगा ना ये मगर ये Yes, sir. चलिए गोनिक फिर चलिए 0 खतर I जे ना 0 इज 0 ग्रेटर देन 0 नो ये चलिए ना देवी फिर चलिए चल, इज I 1 ये चलिए फ्रॉम जे ना 1 Yes, sir. Accolade. तो एक बार चलेगा उसके बाद अब देखो कितनी बार चलेगा फिर फिर J2 डिक्रीमेंट हो होगा जाएगी और फिर ये 2 बार चलेगा फिर 3 बार चलेगा तो मेरा ख्याल है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकलेगा ये क्या बोल रहे हैं इसको लेकिन Yes, सर sir. इसको डिक्रीमेंट है ना हाँ ये स्टिल n टाइम्स के लिए ऐसा n I ना चले n times. या चलिए 1 plus 2 plus 3 n minus 1 time. Very 1 plus 2 plus 3 plus n minus 1 times so arithmetic progression that is n into N. n plus 1 Sir, divided by n. 2 that is n square short asmus Yes, sir. इनका n तो हम n go n square. ठीक है यस सर अब अगर हम देखेंगे हमारे जो ये थे ना हमने किया था लीनियर सर्च कहीं पे किया था ना हमने Yes, sir. फिर कहीं नहीं. ये को लीनियर सर्च अगर फॉर एग्जांपल हम कोई फंक्शन लिखते हैं हाँ तो उसका हमें ये जो अपना ये आता है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो जैसे फॉर एग्जांपल n आती है o ऑफ n आती है हाँ। फॉर एग्जांपल हाँ हमें उसको ट्राई करना है इसे कम करने का मतलब एज इन टाइम के हिसाब से नहीं कि हम बता उसको रहे हैं change- कि हम बता रहे हैं कि वर्स्ट केस में जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको लेंगे जो आप सवाल बता रहे हैं वही हम कर रहे हैं इशू फंक्शन है ना ये मेरी जो फंक्शन है कौन लीनियर फंक्शन लीनियर सर्च मैंने एल्गोरिथम दिया लीनियर सर्च का उसमें हम ये कितनी बार चलेगा बिकॉज वी टोल्ड यू दैट हम एब्स्ट्रैक्ट मैशिन मॉडल के काम करेंगे हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो इसका है प्रोसेसर का वो नहीं लेंगे मैशिन फास्ट थी स्लो थी वी डोंट केयर अबाउट इट क्योंकि हमारे लिए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेप ले रही है ना सो फॉर अस ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग 1 स्टेप ठीक है वही कह रहे हैं ना हम एक मिनट कहाँ गया पेन था ना कहीं पे अरे यार हाइड इट
पेन 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 का नाम क्या था यार, वो बंद हो गया कहीं से। तो पता पेनस क्या होता था नाम, जिससे ना मैं लिखता था, एच पेन। नहीं सर, हम रिसेंट में होगा ना सर? नहीं वो खुला ही था यहाँ पे होता है ना वो आइकन, उसका देख लेते हैं ना कहीं पे। यार गायब ही हो गया, पता नहीं वो डिलीट मत किया है किसी ने। एनीवेज लेट्स यूज दिस पेन, ऑप्शन टैब। पता नहीं इसके तो वो पेन भी गायब ही है लगता है मुझे। ये दोनों पेन गायब कैसे हो सकते हैं ना। यहाँ पर दूसरा पेन था ना मेरा, वो कहाँ गया? अरे वो भी डिलीट हो गया। माशी इमो कर भी थी वो, इमो कर गड़बड़ शुरू। एनीवेज लीव इट। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अब देखिए इसमें ऐसे ही बताया क्योंकि मेरा पेन नहीं है यहाँ पे, somehow they got deleted। सो यहाँ पे लीनियर सर्च अगर मैं कर रहा हूँ, इंट की इसका एक स्टेप लगेगा, आई इसका एक स्टेप लगेगा, बिकॉज वी टेक एवरीथिंग एज ए वन स्टेप। ठीक है ना। Yes, इस sir. इंटरनली क्या आर्किटेक्चर है, वी डोंट वरी अबाउट दैट। हम वी टेक एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ वन स्टेप। इसको एक स्टेप लगेगा, स्कैनफ को एक स्टेप लगेगा, लग गया ना। सो एक Yes, sir. 2 3 4 स्टेप यहाँ तक आ गए हमारे पास। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, आई डोंट वरी अबाउट देम, राइट। And my Whatever worry about is this loop, the limit, because this will govern me how much time will it run। ठीक है, are you getting me? Command C। Yes, sir. If I copy paste it on my that thing, can I copy paste it? Command V, yes। Now look here, okay, text, can I select it a little bit here, right? Now look at that, this is my loop, okay? I am saying for I is equal to 0, I is less than limit I plus plus. It depends upon the limit how many times it will run. Say for example my array is this is the linear search, na? I am searching an array, this is my array and I have elements in it, say 1 2 3 4 5 6। और जो मैं एलिमेंट जो की में ढूंढ रहा हूँ ना, से फर्ज कीजिए वो 1 है। कौन है? सो मैं पहले 0 से चल रहा हूँ जब तक मेरा लिमिट है, यानी कि मेरी साइज जितनी है वहाँ तक। मैं कह रहा हूँ क्या AR ऑफ आई, व्हाट इज आई दिस टाइम? 0। आई इज व्हाट? सो यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या AR ऑफ 0 बराबर है की के? हाँ है। तो कितनी बार चलाएं? मोकलो ना, एक बार। ये मिल गया ना तो ये ब्रेक करेगा ना यहाँ पे। यस सर। बोलेगा कि भाई साहब मिल गया, निकलो बाहर, ब्रेक। इफ हो गया ना ट्रू, यस सर। सो ये बाहर निकलेगा। कितनी बार चला? एक बार। क्योंकि बेस्ट केस था, ये बेस्ट केस था कि जो आप ढूंढ रहे हो वो पहले ही मिला। लेकिन हम बेस्ट केस से एल्गोरिथम को डिफाइन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भाई मेरे को वो चाहिए जो लास्ट एलिमेंट है, जब तक इसको मिलना नहीं चाहिए पहले। ठीक है ना, इसको मिलना ही नहीं चाहिए ना। कंट्रोल Right, C, sir. यानी एडिट में हम worst case ढूंढ रहे हैं। हम 6 ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट्स यहाँ पे 10,000 है। कितने हैं? 10,000। और यहाँ पे वो 10,000 वाला एलिमेंट है, मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा n है, जो भी मेरा n है, चाहे n6 था, 10,000 था, 1 लाख था, 10 लाख था, कितना मुझे नहीं पता, तो ये कितनी बार चलेगा फिर अगर वो लास्ट वाला एलिमेंट है? वर्स्ट केस अगर आपको मिल रहा है n-1 अगर हम स्टार्ट से n टाइम चलेगा सर, n टाइम। ये n टाइम चलेगा। सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n? N. सो व्हाट इज बिग ऑफ n टेलिंग मी? हम This भी is the वातल worst है case. पर इतना गटकार कि नहीं भाई इससे बदतर नहीं चलेगा ये। यस सर। इससे बेहतर तो चल सकता है ना। फॉर एग्जांपल आपने दूसरा ही एलिमेंट ढूंढना था, आपको तीसरा ही ढूंढना था, चौथा ही ढूंढना था, वो चौथे ढूंढ के ही निकल गया बाहर। ये 4 ही बार चल रहा है, मेरे पास 1 करोड़ एलिमेंट्स है, लेकिन जो मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ वो तीसरी पोजीशन पे है यहाँ पे। तो ये 3 ही बार चलेगा, बाहर आएगा। क्या मैं उससे बता सकता हूँ कि ये एल्गोरिथम बेटर करना? ना। मेरा क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मकसद क्या है कि हम कह रहे हैं कि क्या मेरा एल्गोरिथम बेटर है कि नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई कह रहा है कि मेरा एल्गोरिथम है ना वो बिग ऑफ n है, और दूसरा कह रहा है भाई साहब मेरा एल्गोरिथम है ना बिग ऑफ log n है। ठीक है, अब किसका एल्गोरिथम बेटर है? डेफिनेटली इसका एल्गोरिथम बेटर है।
log of n. लॉग ऑफ एन तो बिल्कुल चल रहा है। अगर किसी का बिग ऑफ एन सुबह एक्सपोनेंशियल है तो क्या इसका एल्गोरिथम बेटर है? नहीं है ना। तो व्हाट इज बिग ओ टेलिंग मी? बिग ओ और एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास है वो ये बता रही है कि हम वर्स्ट केस में लेंगे। पहले क्या लेंगे? बिकॉज बिग ओ इज अबाउट द वर्स्ट केस। हम वर्स्ट केस में कह रहे हैं कि कितना ये भागेगा इससे, इस यानी कि ये अपर लिमिट है। माई एफ ऑफ एक्स, दैट इज व्हाट आई सेइंग कि जो मेरी एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स से लोअर ही रहेगी ना, या इसके दरमियान रहेगी, इससे ज़्यादा भागेगी नहीं। यानी कि ये ख़राब हालत है, ये अपर बाउंड है ना मेरा। ये जी ऑफ एक्स जो मेरा क्या Yes, है, sir. दिस इज माई, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माई एफ ऑफ एक्स is big O of g of x for all n not greater than equal to 0 and some constant c, whatever. So what, in other words, in simple terms, if I have to say it, is that कि भाई मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ये भागेगा नहीं। जो मेरी फंक्शन है, जो मेरा एल्गोरिथम है, वो इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता। ये अपर लिमिट, इससे अंदर अंदर हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम में आएगा तो इतना आएगा, इसके बाद यहाँ से नहीं आएगा। गेटिंग कٲشِر पٲٹھۍ حظ اگرے تٲوَن تہِ پیٚیہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अगर यही चीज़ हम करेंगे आपके बाइनरी सर्च जो हमने किया था, जो बाइनरी सर्च हमने किया था ना, ये वाला बाइनरी सर्च, ठीक है। अगर मैं बाइनरी सर्च उठा के, पेन गायब हो गया ना, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। ये लो इज लेस देन हाई क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, एलिमेंट नॉट फाउंड कह रहे हैं, वो छोड़ो उसको। हमारा मेन चीज़ में होता है कि हमारे पास कितनी बार ये भागता है ना कॉपी। जो हमने बाइनरी सर्च किया था, इसका मुझे बताओ अब जल्दी से, फटाफट कमांड भी, ठीक है। ये मेरी बाइनरी सर्च है, ठीक है। अब इसके ऊपर काम करो। ये सारी चीज़ें एक एक बार चलेंगी, आई डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। ये एक बार चलेगी, ये भी एक बार चलेगी, आई डोंट वरी अबाउट दिस, पुट देम इनटू ट्रैश। इसके तो कंसिडरेशन नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि n कितना भागेगा? अगर n 1 करोड़ है, अगर n क्या है, 1 करोड़. सिर्फ 1 मिलियन n है, सो ये एक एक बार चलेगा। मान लो 4 बार चल गया, 1 मिलियन के सामने 4 क्या होता है? वो कुछ नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं स्केलेबिलिटी, जो मैं समझा रहा था आपको, स्केलेबिलिटी। आवर एल्गोरिथम शुड बी स्केलेबल। स्केलेबल मीन्स जितना बड़ा n बनेगा, क्योंकि अगर छोटा n है ना, कि मतलब आपके एल्गोरिथम को 10 टर्न्स लगे, मेरे एल्गोरिथम को 100 टर्न्स लगे, इट डजंट मैटर फॉर द प्रोसेसर, जो हमारी स्पीड आजकल है, इट डजंट मैटर फॉर अस, राइट। वी मैटर इज़ कि जब n बहुत बड़ा हो रहा है तो उसमें, क्योंकि जो बाइनरी सर्च आपको है, अगर आप करोगे 2 रेज्ड पावर, फॉर एग्जांपल हम करेंगे रेज पावर, 2 रेज्ड पावर में क्या लिखा मैंने, 2 रेज्ड पावर, व्हाटएवर, कैलकुलेटर 2 रेज्ड पावर करूँ चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अब एक जो अपना ये एल्गोरिथम है हमने लिखा, अब उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ गई n, ठीक है। अब मैं वही कह रहा हूँ, हम उस एल्गोरिथम को हम चेंज कर सकते हैं कि मतलब उसी कोड को हम चेंज कर सकते हैं कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसी तरह कम करे कि नहीं, मतलब ये ऐसा ही आ रहा है। डेफिनेटली, इफ़ यू आर, फॉर एग्जांपल आप अपना एल्गोरिथम दे रहे हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरा जब मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ उसका कॉम्प्लेक्सिटी है n, सो डेफिनेटली यू आर डूइंग रॉन्ग ना, यू हैव टू यूज अ बेटर एल्गोरिथम, राइट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि योर एल्गोरिथम इज बेटर और नॉट? देखो 2 रेज़ पावर 20 है मेरे पास, क्या है 2 रेज़ पावर 20, सो तकरीबन 10 लाख 10 लाख एक्सपोनेंट 10 लाख 48576 व्हाटएवर दैट इज, मैं कह रहा हूँ 2 रेज़ पावर 20 इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है ना, व्हाटएवर, ये 10 लाख है, ठीक है। अगर किसी जो लीनियर सर्च हम करेंगे, क्या करेंगे, लीनियर सर्च, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है आपको बिग O ऑफ n, इनके वर्स्ट केस में कितना लगेंगे, कितने टर्न्स लगेंगे, बराबर 10 लाख 400 व्हाटएवर, अगर वर्स्ट केस में लास्ट एलिमेंट ना
यस सर 10 लाख टर्म्स। लेकिन इसको देखो 2⁻20 इज 10, क्योंकि बाइनरी सर्च मेरा जो है, पहले बाइनरी सर्च करो ना, उसके बाद करेंगे। बाइनरी सर्च में हम किसकी बात करेंगे? इस वाइल लूप की। वाइज लो इज लेस देन हाई, हम मीड को क्या कर रहे हैं? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। फर्ज कीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स है मेरे पास। क्या है? 8 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? अगर Yes, मैं sir. 8 ढूंढ रहा हूँ, अगर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? 8। 8 लीनियर सर्च में कितने आइट्रेशन लगेंगी? 8 आइट्रेशन। 8 ये यस पूछेगा सर। ना इसको, तू मत 8 है, तू मत 8 है, जाएगा लास्ट में। तो 8 आइट्रेशन मिनिमम लगेंगी इसको वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस समझ रहे हो Worst ना? case. यस सर। लेकिन आपके बाइनरी सर्च में कितना लगेगा? You can go of mid, right ना? यस इथा सर। you go low, you go high. Kadi mid. Mid is called low plus high divided by 2. 7 plus 0 divided by 2 को दगो 3. वो mid नहीं रही है। Kadi ये में सी compare चमा शुक बाय 8. दबिसे ना बना शुक 8 किहिन। 8 का पर ही कैसे दिल? दक्षिण साइड। ये मोकले ना प्रॉब्लम है गई ना, हाफ प्रॉब्लम। यस सर। प्रॉब्लम क्या गई? यू है कोई जो आप वाइल लूप में कर रहे थे ना, i is equal to i into 2 और divided by 2, ये ना दी। अब इसका प्रॉब्लम का हाफ बन गया। मानो 1 करोड़ एलिमेंट इधर से थे, 1 करोड़ एलिमेंट इधर से थे। पहली ही आइट्रेशन में जो 1 करोड़ एलिमेंट आप ढूंढनी ही नहीं है, क्योंकि इट हैज टू बी ऑन द राइट साइड। अब And minus and divided by 2. व्हाट विल बी लो? लो विल बी इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 Plus 1, है ना? sorry. ये चीज चलेगी ना। अब लो इज इक्वल मिड प्लस 1 क्यों? क्योंकि बंदा जो है वो राइट साइड है। Yes, क्योंकि sir. जो एयर ऑफ मिड है वो Hmm. छोटा है। अगर बड़ा है, यानी कि मैं इधर से ढूंढ रहा हूँ, अगर एयर ऑफ मिड बड़ा है, यानी कि ये वाली कंडीशन ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना। अगर एयर ऑफ Yes, मिड sir. बड़ा है की से, तो फिर बंदा इधर से है ना, तो फिर माइनस करना है हाई को, हाई इधर लाना है। फिर फिलहाल हमारे केस में लो इधर लाना है, ठीक है? तो एक आइट्रेशन लग गई, फिलहाल लग गई एक आइट्रेशन हमें। अब दूसरे आइट्रेशन में फिर से लो निकलेगा। 7 plus 4 divided by 2, how many समझ दैट? 11 divided by 2, 5.5. go 5, so this is mid. सो दिस इज मिड मेरा ये आ गया 5, ठीक है? अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या तू 8 है? करा नहीं है ना? मगर चूंकि फिर से 8 इससे बड़ा है ना, तो दूसरी आइट्रेशन लगी, उसमें नहीं मिला हमें, तो ये जाएगा राइट साइड। क्या जाएगा? Right side. सो लो विल बी मिड प्लस 1, लो विल बी नाउ 7 एंड हाई इज ऑन 8। अगेन मिड निकालेगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, 7 plus 6 is how much? 13. 13 divided by 2 is how 13. much? Almost 6. So that means 6. ये आपका निकल गया मिड। इसके यानी कि एक आइट्रेशन और लग गई और लास्ट में जाएगा उसके पास और मिल गया। यानी कि मैक्सिमम अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं तो वर्स्ट केस में 2⁻³ आपको आइट्रेशंस लगेंगी, बिकॉज 3 आइट, क्योंकि 2⁻³ इज 8, राइट? तो अगर आपके पास, तो अगर आपको इसकी कॉम्प्लेक्स निकालनी, व्हाट विल बी बैक? लॉग ऑफ n। अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम आपको 3 आइट्रेशंस लगेंगी, ठीक है? Right. जो आपका बाइनरी सर्च है ना, जो आपका बाइनरी सर्च है वो ट्री की तरह काम कर रहा है ना। किसकी तरह? Tree. Say for example we have 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 ऐसे रखते हैं, ठीक है? तो पहले मिड क्या हो गया इसका? 0 plus 7 7 के 14 के 7 से छोटा यहाँ पे आएगा, फिर इससे बड़ा यहाँ पे आएगा। 7 और 0 का मिड क्या आएगा? 3 आएगा ना। 3 और 0 का मिड क्या आएगा? 1, वो उसका 1 यहाँ से होगा। और डेफिनेटली 1 का जो है छोटा कौन है? वो 0 है, वो यहाँ पे आएगा। 2 यहाँ पे आएगा। ट्री स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हम ट्रीज पढ़ेंगे बाद में। ये 5 यहाँ पे आएगा, 5 खुद बोर्ड को 9 और 5 खुद बोर्ड नहीं, मैंने गलत किया, 5 से बड़ा 9 है ना, नहीं 9 कैसे लिखूँगा मैं यहाँ से? ये 4 है, 4 and 6, क्योंकि 6 है ना 7 से, यहाँ से होना चाहिए ना लेफ्ट साइड 7 से छोटे, और यहाँ से 7 से बड़े। 7 और 15 को आ गया 11 आ जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ 9 और यहाँ पे 8 आएगा इधर, है ना? और 10 आएगा इधर।
Yeten go troa soti katasha, you go your ba, your go panda आओ ना. ये स्ट्रक्चर बनना या ये बाइनरी सर्च का जो हम करते हैं ना वो उसका ये ट्री स्ट्रक्चर बनेगा. आप ढूंढ रहे हो 15. कौन ढूंढ रहे हो? लीनियर 15. सर्च में आपको वर्स्ट केस में 15 आइटरेशन लगेंगी बराबर 16 टाइम्स है ना. फ्रॉम 0 to 15 Right. 16 आइटरेशन लगेंगी. लेकिन आपको बाइनरी सर्च में आप 7 के पास गए. 7 2 15 है. 7 है ना मिड असल में. ये मैंने मिड्स रखे. क्या रखे ये मैंने? ये जो नोड्स बनाए Yes, मैंने sir. मिड का बनाया. सो मैं 7 को बोल रहा हूँ क्या तू मेरा 15 है? वो कह रहा नहीं है. तो 15 क्या है, छोटा कि बड़ा? बड़ा. 15 बड़ा है तो इस साइड ढूंढना ही नहीं है. तो इधर जाओ. ढूंढना नहीं है. तो नेक्स्ट मिड निकालो. वो निकल गया 11. तो 11 तू बता तू 15 है? वो कहता है नहीं. 15 किधर से है? राइट साइड. तो इधर Right. ढूंढना ही नहीं है. ठीक है ना. तो इधर जाओ राइट पे गए इसके पास. फिलहाल लगी एक आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, ये तीसरे के पास गया अब. ठीक है. तो जनाब तू है क्या? वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं हूँ. तो 15 कहाँ से होगा? राइट साइड. इधर ढूंढना ही नहीं है. तो मिल गया. चौथी आइट्रेशन में मिल गया. यानी कि मैक्सिमम जो आइट्रेशन वर्स से वर्स केस जो है ना उसमें मेरे पास 4 आइट्रेशन लगेंगी. 4 से ज़्यादा नहीं लगेगी. लीनियर सर्च में आपको बराबर 15 आइट्रेशन लगेंगी. 16 इनफैक्ट 16 है ना 0 to 16. क्योंकि अगर 16 एलिमेंट्स आपके पास है क्या है? बिकॉज 2 raised power 4 is 16. Right. तो मैक्सिमम आइट्रेशन जो लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है? 4 व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट? log of n. लॉग ऑफ एन भाई साहब है ना. सो मैं कह रहा हूँ आपको 2 raised power 20 इज इक्वल 10 लाख 4 whatever 10 लाख 20 है. iteration. लीनियर सर्च में कितनी लगेंगी आपको भाई साहब? Sir, 10 लीनियर lakhs. सर्च का आपको लॉग ऑफ एन आ रहा है ना. और सॉरी बाइनरी सर्च का लॉग ऑफ एन आ रहा है. और लीनियर सर्च का बिग O ऑफ एन आ रहा है. इसका बिग O ऑफ लॉग एन आ रहा था. जो आपका लीनियर सर्च है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन. ठीक है. N. और जो आपका sir. बाइनरी सर्च है उसका क्या है आपको? बिग O ऑफ Log of n. जितना एन बढ़ेगा, जितना एन बढ़ेगा. उतना खतरनाक ये बनेगा. कौन? लीनियर सर्च. मैं 10 लाख आपको कह रहा हूँ. आप देखो अंदाज़ा करो कितनी फ़र्क है. आपके पास 10 लाख एलिमेंट्स है ना. 10 लाख 400 समथिंग. तो आपको लीनियर सर्च में वर्स्ट केस में बराबर 10 लाख 418 आइट्रेशंस लगेंगी. लेकिन आपकी बाइनरी सर्च में वर्स से वर्स केस में 20 आइट्रेशन लगेंगी खाली. बिकॉज 2 raised power 20 is equal to whatever that 10 lakh something is ना. So how can I write it? Log of whatever that is ना 10 lakh. That is equal to how much? 20. 10. So 20. the sorry. maximum worst case scenario is 20. 20 से ज़्यादा iterations नहीं लगेगा. लगेंगी. अब अगर आपका n बहुत बड़ा है, अब अगर आपका n क्या है? से हम लेंगे 2 raised power 50. ठीक है. ये ना हमारे बोर्ड एलिमेंट आख ग्राम दीजिए रेज पावर 15 एक्सपोनेंट. ठीक है. दैट इज या इसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल है कितना बड़ा नंबर है. आपको इतना ट्रिलियंस ऑफ आइट्रेशन लगेगी लीनियर सर्च में. बाइनरी सर्च में Yes, कितनी sir. लगेगी? 50. ओनली 50 आइट्रेशंस. कैन यू सी द पावर ऑफ Worst. बाइनरी सर्च? Yes, sir. Yes, yes. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. सो जब कोई बोलता है कि मेरी हमें सीधे पता चलता है कि भाई साहब आई वुड लाइक टू टेक लॉन्गर क्लास नाउ. ठीक है. नींद तो नहीं आ गई? क्योंकि ये नहीं थोड़ा सा sir, कंप्लीट नहीं। करेंगे कि अगर कोई बता रहा है कि मेरे पास बिग O ऑफ 1 है, मेरा लग रहा है बिग O ऑफ, 1. तो हम कहते हैं इसको ये कॉन्स्टेंट है. इसका इसकी मीनिंग ना, इसका मीनिंग है कि ये कॉन्स्टेंट है कि एक ही आइट्रेशन लगती है. जैसे आप मुझे करना है से पॉप फ्रॉम द क्यू या पुश इनटू द स्टैक मुझे करना है, या पॉप मुझे निकालना है एलिमेंट फ्रॉम द टॉप से. तो उसमें कितना लगेगा? एक ही Yes, sir. आइट्रेशन लगेगी है ना. Yes. तो ये कोई मसला ही नहीं है. लेकिन अगर मुझे कोई कह रहा है कि बिग O ऑफ, अब क्या है कि मैं जो ये ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, ये बेस्ट चीज़ें हैं. मतलब एल्गोरिथम बेटर है मेरे से. जो नीचे वाला है वो थोड़ा कम बेटर है. ठीक है. तो इससे कम बेटर है log n. क्या है? log ऑफ Log n. n. सो दैट विल आई कॉल इट बाय मेरा जो
एल्गोरिदम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिदमिक है। क्या है? लॉगरिदमिक। ये बेटर है, ये बेटर है, वन बेटर है log n से, है ना? कांस्टेंट बेटर है, यस सर। ओके। अब अगर मेरे पास होगा कि मेरे पास है बिग O ऑफ log ऑफ मगर n स्क्वायर, अब चूंकि n स्क्वायर है इसलिए ये थोड़ा इससे कम बेटर है ना। सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस, राइट? राइट सर। सो इट्स कॉल्ड log स्क्वायर्ड। ठीक हो गया? यस सर। अब इससे थोड़ा खराब एल्गोरिदम जो है वो बिग O ऑफ रूट n है। बिग O ऑफ रूट वी विल कॉल इट रूट n। इससे थोड़ा, क्योंकि ऊपर जितना जाएंगे उतना बेटर बेटर है, जितना नीचे जाएंगे उससे Yes. थोड़ा खराब खराब होता जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। बिग O ऑफ n अगर मेरे पास है, जो ना अभी लीनियर सर्च का था, सो आई कॉल इट लीनियर, आई कॉल इट व्हाट, लीनियर। अब इससे थोड़ा ख़राब है बिग O ऑफ, अगर मेरे पास है n भी है मगर साथ में log n भी है। ठीक है? n log n, Yes, we sir. call it n log n, सिंपल n log n। इससे थोड़ा ख़राब जाएंगे तो आपका n स्क्वायर वाला आ जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर, कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी n Yes. स्क्वायर है, बिग ऑफ n स्क्वायर है, एंड वी कॉल इट sir. क्वाड्रेटिक, वी कॉल इट व्हाट? क्वाड्रेटिक। आपने कल ही देखा क्वाड्रेटिक, बबल सॉर्ट आपने देखा, उसमें n स्क्वायर लगेगा सीधे, जो बबल सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? देखो, जो बबल सॉर्ट हमने कल किया ना परसों का, गया कहाँ गया VS कोड? बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट कहाँ है? इसको आना चाहिए अब आपको, ये को रिवर्स करना, ये हो गया जनाब आपका बबल सॉर्ट, है ना? इसमें सीधे देखो, फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन लिमिट, फॉर j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन लिमिट माइनस 1 माइनस i, है ना? अब ये देखो, ये पहली बार कितने चलेगा? कौन सा, ये वाला? ये चलेगा पहले क्योंकि i 0 है ना, आई 0 तो लिमिट -1, यस। तो लिमिट तक चलेगा ना, मतलब जितना लिमिट, क्योंकि 0 से चालू करें ना, Limit अगर लिमिट 5 है तो 5 बार चलेगा, फिर 2 बार, फिर ये फिर 4 बार चलेगा, क्योंकि पहले ना i माइनस होगा, तो पहली बार 5 बार चला, फिर 4 बार चला, फिर 2 बार चला, फिर 1 बार चला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कॉम्प्लेक्स क्या निकलती है? बिग ऑफ n स्क्वायर, अभी जो किया ना हमने, यस सर। सो दैट इज क्वाड्रेटिक। ये बड़ी खतरनाक, ये बहुत ही बुरा एल्गोरिथम है ना इनसे, एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। ठीक है? इसलिए जो बबल सॉर्ट है वो कोई काम का चीज़ नहीं है, वो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए 10 लाख एलिमेंट्स हैं, आपको 10 लाख इंटू 10 लाख इतना बड़ा टाइम लगेगा, इतनी आइट्रेशन निकलेगी ना। सो दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन इन फैक्ट। ओके, दैट्स वी नेवर यूज बबल सॉर्ट इन रियल टाइम, क्योंकि इसका n स्क्वायर है। इससे बदतर क्या हो सकता है? बिग ऑफ क्यूब। सो दैट विल बी कॉल्ड क्यूबिक। इससे खराब क्या हो सकता है? n raised to Raised to power 4. दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। इससे खराब क्या हो सकता है? n raised to power n। 2 रेज पावर n, हम कहते हैं 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जो n रेज पावर n है ना, तुम पे खुदकुशी कर, सो ही डिजर्व्स सुसाइड। वो कभी कंप्यूटेशन से बाहर ही नहीं निकलेगा जब when n goes bigger, right? एक होता है e raised power n, we call it, this is also exponential but it is slower than the upper one. Okay? अब हम किसको बोलेंगे कि भाई एफिशिएंट एल्गोरिथम है? एट लीस्ट विच एल्गोरिथम इज कॉल्ड एफिशिएंट? इसमें से ना, अगर इसमें होगा, मतलब सबसे ऊपर वाला। हाँ, वो नहीं समाज शुभ, दैट्स द आइडियल सिचुएशन। इट्स नॉट लाइक आके आइटरेशन कोई नहीं, हम मत कहेंगे किसी चीज़ में मत एक ही निकलेगी। ठीक है? लॉगरिथम। हम कहते हैं कि अगर आपके एल्गोरिथम में n log n है ना, क्या है, n log n, या इससे फास्टर है, अगर पता है n log n से ऊपर ऊपर है आपके पास है, ये हम रखते हैं थ्रेशोल्ड। क्या रखते हैं? जो नासिर कह रहा था कि आपका एल्गोरिथम जो है वो लीनियर नहीं आना चाहिए, मतलब लीनियर से n log n थोड़ा ज़्यादा, और इससे अगर ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो
that's not an algorithm at all, right? अब अगर मजबूरी है तो उस सूरत में है, लेकिन इससे ऊपर ऊपर जाना चाहिए, इससे कम Yes, हमें sir. रखना है कि वी शुडंट हैव एट लीस्ट n log n से नीचे नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर जाना चाहिए. यानी कि व्हेन यू, इफ यू आर अ साइंटिस्ट एंड यू वांट टू बिल्ड योर एल्गोरिथम, यू शुड टच Hmm. एट लीस्ट हियर, राइट? सो log n, Hmm. ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं किसी चीज़ की, तो बेस्ट केस में आते हैं ये चीज़ें. ये तो बेस्ट केस में आ गया ना कि बिग ऑफ वहाँ निकलेगा, मगर रोज़ कहाँ निकलेगा. सो अगर आपका log n आ रहा है तो बहुत मुबारक है, log n स्क्वायर आ रहा है, रूट ऑफ n आ रहा है, इवन लीनियर आ रहा है, या इवन log n आ रहा है, हम कहेंगे चलो फिर भी कुछ है. लेकिन अगर इससे नीचे आ गया है तो मेहरबानी करो, फिर आप एल्गोरिथम चैप्टर पढ़ना ही छोड़ दो. ठीक है जी, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. I think that is enough. Hopefully you got the things. And now on, when we move further with the algorithms, we will directly say what is our complexity rather than proving it. So if you are having issues, I have recorded this video also. You can simply watch the video again and come back to it. Okay? चलो ठीक है जी. श्योर. Okay. ओके, अल्लाह हाफिज़. Assalam.